Welcome students in the part 2 video of the theme 1 from the beginning of the time. Students, in part 1 video I had explained you about the sources to understand early humans, and under that topic I explained you about human fossils, cave paintings, stone tools and act of creation of God. And then I explained you about primates who emerged nearly about 36 million years ago, hominoid who emerged nearly about 24 million years ago, hominids who emerged nearly about 5.6 million years ago, and about Homo sapiens who emerged nearly about 1,60,000 years ago. And I told you about Neanderthalensis and Heidelbergensis. So this was the recap of that part 1 video. Now let's start our part 2 video, the story of human evolution. Under this topic we are going to learn about modern human beings, as we know that the earliest evidence for Homo sapiens has been found in different parts of Africa. Now, two totally divergent views have been expounded, one advocating the regional continuity model and the other the replacement model, है ना। अब जब हम सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट हिस्टोरियंस की टू टोटली डिफरेंट थ्योरीज निकल के आई, और वो थी, एक थी हमारी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जिसमें कहा गया कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो डिफरेंट रीजन से हुआ है, और दूसरी थी हमारी रिप्लेसमेंट मॉडल जिसमें कहा गया है कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो सिंगल रीजन जो कि है अफ्रीका उससे हुआ है। टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैड एडेड दिस figure as well, है ना। Let's understand first the replacement model, and according to this figure you all can see Africa, है ना। अफ्रीका से बता रहे हैं कि अफ्रीका ये जो सिंगल रीजन है यहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है, and then we spread into different parts of the world. And when we are going to see this regional continuity model, here you all can see हम बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं ना। इट मीन्स कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से बना है ना। इसीलिए हमें इससे क्या कहा है, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। स्टूडेंट्स, टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर प्रॉपरली आई वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट मॉडल, इट मीन्स सिंगल रीजन ओरिजिन, and regional continuity model, it means multi-regional origin, है ना। So the first and big difference is humans originated in Africa, and on other hand we can say humans evolved in different parts of the world. Then in replacement model I want to say archaic humans were replaced by modern humans, है ना। Genetic and anatomical homogeneity support this view, and on other hand there is regional differences in features of modern humans. And now the last difference is similarities due to origin from a single region, and dissimilarities are due to difference between Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis. तो आपको इस बात से तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि हमारा जो रिप्लेसमेंट मॉडल थ्योरी थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई है ना। एंड बिकॉज ये एनाटॉमिकली होमोजेनिटी की वजह से हम सब कैसे हैं, शरीर रचना में हम एक जैसे दिखते हैं, है ना। इट मीन्स कि दो आंखें हैं, एक नाक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, है ना। एंड जब हम रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल की बात करते हैं, इट मीन्स मल्टी रीजनल ओरिजिन की बात कर रहे हैं जब तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हुआ है, ओके। जिसकी वजह से हम लोग क्या हैं, एक दूसरे से हमारी एनाटॉमी, हमारी शरीर रचना, हमारे फीचर्स क्या है, डिफरेंट हैं, है ना। जैसे कि कई रीजन्स पे क्या होता है कि शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं, है ना, कहीं पे बहुत टॉल लोग होते हैं, एंड देन वी कैन से दैट कि कहीं के लोगों की स्किन टोनिंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं ना, और कुछ ब्लैक होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑफ
region. Now question arises how these early humans started obtaining food. So students, they had started obtaining food by gathering, hunting, scavenging and fishing. Now let's see one by one. Firstly, we are going to start with gathering. Gathering would involve collecting plant foods such as seeds, nuts, berries, fruits and tubers. That gathering was practiced individually rather than collectively. Fossilized plant remains are relatively rare, but plant remains that were accidentally burnt result in carbonization. And in this form, organic matter is preserved for a long span of time to find out evidence for food gathering by early humans, है ना. तो इसमें आपने अभी क्या समझा कि हमारे पास जो फॉसिलाइज प्लांट हैं उनके रिमेन तो बहुत कम हैं, बट जो हमारे एक्सीडेंटली हमारे प्लांट सीड्स या कुछ भी जल गया था, है ना, एंड बिकॉज ऑफ कार्बनाइजेशन वो हमारे पास लंबे टाइम तक क्या रहा, उसके एविडेंसेस रहे, है ना. एंड नाउ नेक्स्ट इज हंटिंग. हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लेटर अबाउट 500,000 years ago, and the earliest clear evidence for the deliberate planned hunting and butchery of large mammals comes from two sites, and they are Boxgrove in southern England and Schöningen in Germany. तो वट यू ऑल हैड सीन कि जो हमारे ये ह्यूमंस थे उन्होंने प्लान वे में हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था. जो भी एनिमल्स अपने हर्ड में, प्रे में होते थे, उनको प्लान वे में वो घेरते थे और हंटिंग करते थे, है ना. नाउ नेक्स्ट इज स्कैवेंजिंग. नाउ इंक्रीजिंगली इट इज बीइंग सजेस्टेड दैट द अर्ली होमिनिड्स scavenged or foraged for meat and marrow for the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. It is equally possible that small mammals such as rodents, birds, their eggs, reptiles and even insects were eaten by early hominids, है ना. तो जैसा कि होमिनिड्स जो थे वो स्कैवेंजिंग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, है ना. जो कुछ भी हमारे जानवर होते थे जो नेचुरली मर गए हैं या प्रीडेटर्स ने उन्हें किल कर दिया है, उनका फ्लैश वो खा लेते थे. और इसमें आपको, जैसा कि अभी आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारा स्कैवेंजर में किसका नाम आता है, वल्चर, है ना. तो नाउ नेक्स्ट इज फिशिंग. एज फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इज एविडेंट from the discovery of fish bones at different sites. Fishing was practiced from rivers, ponds and lakes with handstone and wood by the early human beings, है ना. As they had started fishing as well. अब fishing जब वो करते थे तो in those days they are not having fine nets जैसे कि आज के डेट में है ना. तो किससे वो फिशिंग करते थे, बाय द हैंड ओनली, है ना. हैंड की ग्रिप से ही वो लोग फिश को पकड़ लेते थे. एंड स्टोन एज के में मैंने आपको बताया था दे हैड प्रिपेयर देयर स्टोन टूल्स एज वेल, है ना. स्टोन्स उन्होंने इतने शार्प स्टोन्स बना रखे थे कि वो स्टोन से ही उसको हिट कर देते थे और वो फिशिंग कर लिया करते थे. एंड वुड से, एज इन दिस पिक्चर यू ऑल कैन सी, है ना. तो अर्ली ह्यूमंस हमारे फिशिंग किया करते थे रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स में. कैसे करते थे, हैंड स्टोन एंड वुड से किया करते थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स. One way of reconstructing the evidence for pattern of residence, this is by plotting the distribution of artifact, है ना. किसी भी चीज को हमें जानने के लिए हमें उसके आर्टिफैक्ट्स तक जाना होता है. नाउ एज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में क्या बताया था, हम किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसके फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स, दो चीज़ों के थ्रू हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं. तो नाउ व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स ओनली. The term can refer to a wide range of things such as tools, paintings, sculptures and engraving, है ना. So this was the definition of artifacts. Some places where food resources were abundant, humans visited repeatedly have more artifacts. In such areas, early humans left behind traces of their activities
and presence. The places that were less frequently visited would have fewer artifacts. तो to make you more understand what is artifacts, मैंने आपको एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर हमारे ह्यूमंस रिपीटेडली जाते थे, जहाँ पे अबांडेंट ऑफ फूड था, है ना, तो वहाँ पर ये ह्यूमंस ज़्यादा टाइम बिताया करते थे, है ना, तो वहाँ पे हमें उनके ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं, है ना। और जहाँ पे हमारा रिसोर्स ऑफ फूड कम था वहाँ पे वो कम विजिट करते थे और जिसकी वजह से वहाँ पे हमें कम आर्टिफैक्ट्स मिले हैं. And the evidences were found in Kilombe and Olegrasele, Kenya. Between 700,000 and 500,000 years ago, thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olegrasele, Kenya. So here you all can see in this picture, Mary and Louis Leakey had a catwalk built around for sight for observers, and here in this picture you all can see few flake tools and hand axes, है ना. So where do we found these evidences? In Kilombe and Olegrasele. And this is very very important to remember that the first shelter was tree, and which could have been shared by hominids, other primates and carnivores. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो ट्री पर रहते थे, है ना, और वो जो ट्रीज थे वो किसके साथ शेयर करते थे? होमिनेट्स, प्रीमेट्स एंड कार्निवोर्स के साथ शेयर करते थे. एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम वी फाउंड फ्यू नेचुरल केव्स, है ना. नेचुरल केव्स जो हमें मिली हैं वो लजार्ड केव है सदर्न फ्रांस में. वो हमें कब मिली? बिटवीन 400,000 एंड 1,25,000 years ago we found natural caves, है ना. And those natural caves began to be used by early humans as well. Evidence for this comes from site in Europe, है ना. तो जो लजार्ड केव है उसमें वो लोग अपना स्टोर करके भी रखते थे कुछ फूड को, है ना, फूड ग्रेन्स, और जो उन्होंने स्टोर करके रखा है हमें उसके भी एविडेंसेस मिले हैं. एंड अनदर एविडेंसेस आर हिस्टोरियंस फाउंड, दैट इज टेरा अमाटा, है ना. The site Terra Amata on the coast of southern France, flimsy shelter with roofs of wood and grasses were built for short-term seasonal visit, है ना. तो ये जो टेरा अमाटा पे जो हमें ये साइट मिली है, ये छोटी सी झोपड़ी टाइप मिली है, ये लोग कैसे बनाते थे? ये सीजनल विजिट के लिए बनाते थे, यानी कि टेम्पररी बेस के लिए. जैसे कि आज के टाइम पे लोग फार्म हाउसेस बनवाते हैं, तो फार्म हाउस पे दे आर गोइंग रेयर, है ना. तो ये जो हमारी टेरा अमाटा पे जो हमारी ये छोटी सी हट जो आप देख रहे हैं पिक्चर में वो मिली है, वो क्या है? वो फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली दे आर बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ हट्स. और ये जो हमारी हट है ये बहुत फ्लिम्सी हुआ करती थी, है ना. फ्लिम्सी शेल्टर मीन्स कि हल्की फुल्की सी हुआ करती थी, है ना. और जो इसका जो शेल्टर रूफ है वो किससे बनाते थे? वो वुड एंड ग्रास से बनाते थे. एंड उसको सपोर्ट देने के लिए हियर यू ऑल कैन सी उन्होंने स्टोन से इसको सपोर्ट दे रखा है. नाउ लेट्स सी हाउसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन. As houses made of stones and baked clay and burnt bone along with stone tools dated between 1.4 and 1 million year ago. तो जो evidences मिले हैं हमें houses के वो कब के मिले हैं? हमें 1.4 and 1 million year ago के, है ना. And they have been found at Chesovanza, Kenya and Swartkrans, South Africa. Now, on the other hand, are indications of the controlled use of fire. This had several advantages. Fire provided warmth and light inside caves and could be used for cooking. Beside fire was used to harden wood, as for instance the tip of the spear, and the use of हीट ऑल्सो फैसिलिटेड द फ्लेकिंग ऑफ टूल्स. तो फायर का यूज़ वो किस किस के लिए करते थे? एज फायर का यूज़ अर्ली ह्यूमंस करते थे टू कीप देमसेल्व्स वार्म एंड लाइट इनसाइड द केव्स,
and they use fire for cooking as well and for hardened wood, है ना, जैसे कि जो स्पीयर है उसके टॉप का जो वुड है उसे हार्ड करने के लिए भी फायर का यूज़ करते थे एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजरस एनिमल, है ना, बिकॉज माना जाता है कि जो हमारे एनिमल्स थे वो फायर की वजह से उन अर्ली ह्यूमंस के पास अटैक करने के लिए नहीं आते थे. Now let's talk about early humans making tools, है ना, how they started making tools, the story of tools, है ना. The use of tools and tool making are not confined to humans. Some chimpanzees use tools that they have made certain anatomical and neurological adaptation have led to the skilled use of hands and fingers favored tools making by the early human. So I had taken this picture, the evolution of the hand. Here you can see in figure A, है ना, जो उन्होंने टूल पकड़ा है, स्टोन पकड़ा है, that is रफ वे, है ना, रफ वे में उन्होंने वो स्टोन टूल पकड़ के रखा है, स्टोन का टुकड़ा पकड़ा है ना. एंड दिस प्रिसिशन ग्रिप ऑफ द चिंपैंजी, है ना. और जो बी फिगर है उसमें क्या है, पावर ग्रिप ऑफ द ह्यूमन हैंड, है ना, पावर ग्रिप के साथ पकड़ा हुआ है उसने. एंड द सी पिक्चर इंडिकेट्स द प्रिसिशन ग्रिप ऑफ द होमिनिड, यानी कि शार्प एक छोटा सा स्टोन है उसको उसने फाइन तरीके से पकड़ रखा है ना. तो इस तरीके से हमारे अंदर एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे. मोर ओवर द वेज इन विच ह्यूमंस use and make tools often require greater memory and complex organizational skills, both of which were present in humans. अब का जो ह्यूमन था उसके अंदर क्या टूल्स बनाने का स्किल क्रिएट हो रहा था. फर्स्ट वन वॉज मेमोरी एंड सेकेंड वन वॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, और इन दोनों की वजह से उसने बहुत ही फाइन टूल्स बनाए, है ना. द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम साइट्स इन इथियोपिया एंड केन्या. It is likely that the earliest stone tools makers were the Australopithecus. We do not know whether the tool making was done by men और women और both. अब ये कहीं पे भी एविडेंस नहीं है कि जो टूल्स हैं they were particularly made by men or women or both, है ना. It is possible that stone tool makers were both women and men, and women in particular may have made the and used tools to obtain food for them as well as to sustain their children after weaning, है ना. women कब यूज करती थी टूल्स को, जबकि वो फूड को ऑब्टेन करने के लिए जा रही होती थी, और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, इट मीन्स जो 2 साल के बाद के बच्चे होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए टूल्स को यूज़ किया करती होंगी, ऐसा मानना है. Now here in this picture you all can see spear thrower. About 35,000 years ago, improvements in the techniques for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear throwers and the bow and arrow, है ना. तो अब 35,000 years ago हमारी टेक्निक्स में हमारे जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उनकी जो हंटिंग की टेक्निक थी उसमें क्या आ रहे थे, इम्प्रूवमेंट आ रहे थे, स्किल्स इम्प्रूव हो रहे थे उनके, है ना. उसमें से एक हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है स्पीयर थ्रोअर एंड द बो एंड एरो, है ना, तीर कमांड, है ना. नाउ देयर वर अदर नीड्स सच एज द ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल्स, है ना. और यहाँ पे अब जब हम स्टोन टूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और एमर्ज हो रही थी, वो क्या था, हमारे जो एनिमल्स जिनकी फर होती है उनके भी उन्होंने फर को निकालना स्टार्ट कर दिया था. एंड स्विंग, है ना, स्विंग निडल जो हम जिससे हम सिलते हैं वो भी इन्वेंट हो चुकी थी, है ना. अब हाँ कह सकते हैं कि जो आज की डेट में हमारी जो निडल्स हैं
वो बेहतर निडल्स हैं, तब हमारे पास उतनी बेहतर निडल्स नहीं होती होंगी, है ना। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्वेन क्लोथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 years ago. Beside with the introduction of the punch plate technique to make small chisel-like tools, it was now possible to make engravings on bone, antler, ivory और wood, है ना। जो हमारा जो स्टिचिंग का सबसे पहले हमारे जो एविडेंस मिले हैं वो कब के हैं हमारे पास, अबाउट 21,000 years ago के हमारे पास वो एविडेंसेस हैं। अपार्ट दिस हमारे पास पंच प्लेट टेक्निक थी, है ना, जिससे कि हम चिजल लाइक टूल बना सकते थे, एंड इट वाज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग ऑन बोन, एंटलर, आइवरी और वुड एज वेल. Students, now here in this A picture you all can see they had taken one big stone and after that they had cutted that stone in two parts, है ना. The top of a large pebble is recovered using a hammer stone, है ना. Then in B picture you all can see the produces a flat surface called the striking platform, and in C picture you all can see then strike using of hammer and a punch made a bone और antler, है ना. उन्होंने उसको continuously हिट कर करके उन्होंने उसको डिज़ायर शेप दिया होगा. एंड इन डी पिक्चर यू ऑल कैन सी दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लेड्स दैट कैन बी यूज्ड एज नाइफ्स और मॉडिफाइड टू सर्व एज चिजल्स विच कुड बी यूज्ड टू एनग्रेव बोन, एंटलर, आयरनी और वुड, है ना. तो उससे उन्होंने कुछ छेनी जैसी कुछ चीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था. एंड इन ई पिक्चर यू ऑल कैन सी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनग्रेविंग ऑन बोन, है ना. अब उन्होंने आप देख सकते हैं हियर कि इन्होंने इसमें डिज़ायर पिक्चराइजेशन भी किया है. इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स को ड्रॉ किया है. Next is modes of communication, and the modes of communication of early humans were language and art. Let's start with language, as there are several views on language development. So firstly we can say hominid language involved gestures or hand movements, है ना. तो हम कह सकते हैं जो होमिनिड्स की जो लैंग्वेज थी वो gestures एंड हैंड मूवमेंट्स पर बेस्ड थी. सेकेंडली वी कैन से स्पोकन लैंग्वेज वॉज preceded by vocal but non-verbal communication such as singing or humming. And thirdly we can say human speech probably begin with calls like the ones that have been observed among primates, है ना. Now it has been suggested that the brain of Homo habilis had certain features which would have made it possible for them to speak. Thus, language may have developed as early as 2 million years ago. The evolution of the vocal tract was equally important, है ना. Vocal tract का जो evolution था वो भी बहुत बहुत important है, as this occurred around 200,000 years ago. It is more specifically associated with modern humans such as us, है ना. Another suggestion is that language developed around the same time as art, that is around 40,000 to 35,000 years ago. So the development of spoken language has been as closely connected with art, है ना. तो अभी बताया था modes of communication में language and art are the two important sources. As I told you earlier that there were two kinds of modes of communication. First one is language and second one is art. So now let's understand about art. Hundreds of paintings of animals have been discovered in the caves of Lascaux and Chauvet both in France and Altamira in Spain, है ना. तो हमें कई 100 साल पहले हमें कुछ पेंटिंग्स मिली हैं कुछ एनिमल्स की, जो कि कब के टाइम की है, उनका टाइम पीरियड क्या है, 30,000 years ago to 12,000 years ago की हमें पेंटिंग्स मिली हैं, है ना. कहाँ पे मिली हैं,
लासो एंड चौविट में मिली हैं, जो कि फ्रांस में है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड अल्टामीरा इन स्पेन. And what kind of paintings we found? So these paintings included the depictions of bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas and owls. And we found one best painting at Altamira as well, है ना. Altamira is a cave site in Spain. The painting of the ceiling of the cave were first brought to the attention of Marcelino Sanze de Soutola, a local landowner and an amateur archaeologist है. इट मीन्स कि हम कह सकते हैं जो हमारे मार्सेलिनो सांजे डी साउथोला थे वो एक शौकिया पुरातत्विक थे, है ना. बाय हिज डॉटर मारिया इन नवंबर 1879, है ना. 1879 में मारिया ने उसे सबसे पहले देखा था, है ना. एंड देयर इज वन स्टोरी बिहाइंड दिस पेंटिंग कि व्हेन मार्सेलिनो वाज एक्सकेवेटिंग द केव, है ना, डिगिंग द केव, दैट टाइम उसकी बेटी वहीं पे खेल रही थी मारिया, एंड शी सॉ द बाइसन पेंटिंग, है ना. जब उसने सीलिंग पे ये बाइसन की पेंटिंग देखी तो दैट टाइम शी वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ दिस, एंड उसने जल्दी से बताया पापा पापा आई हैड सीन वन बाइसन. तो दैट टाइम एज ही वॉज एमेटर आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने वहाँ पर उसको और ज़्यादा आइडेंटिफाई किया उसके बारे में, और उन्होंने पाया कि जो पेंटिंग है वो ऐसे ही साधारण सीलिंग पे पेंटिंग नहीं बनी हुई है, वो किसी सेरेमिक चीज़ से बनी हुई है, वो थोड़ी सी उभरी हुई है ना. तो उन्होंने वो आगे जाके आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को दी और बताया, और उसको जब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये ऐसे ही है. बट फाइनली आफ्टर फ्यू डिकेड्स अल्टामीरा पेंटिंग, है ना, अल्टामीरा की केव में जो पेंटिंग मिली है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पर हमारे साइंटिस्ट्स को भरोसा था कि दिस अल्टामीरा पेंटिंग क्या है, वो कुछ अलग है, हमारी पेंटिंग से कुछ अलग है. एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, बाइसन की पेंटिंग मिली थी हमें नॉर्दर्न स्पेन में. Another explanation offered is that these caves were possibly meeting places for small groups of people or location for group activities, है ना. और कुछ explanations हमें ऐसे भी मिले हैं कि ये जो caves थी वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, अपनी कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करते थे या मीटिंग किया करते थे. एंड दीज ग्रुप्स कुड शेयर हंटिंग टेक्निक्स एंड नॉलेज वाइल पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स served as the media for passing information from one generation to the next, है ना. और ये यहाँ पर अपनी क्या शेयर करते थे, अपनी हंटिंग टेक्निक्स, है ना, किस तरीके से हमें हंट करना है ना. तो इस तरीके की ये लोग यहाँ पे मीटिंग किया करते होंगे, अपना नॉलेज अपने एक्सपीरियंसेस को बताते होंगे, है ना. एज पेंटिंग्स, है ना, व्हाट पेंटिंग्स वर द मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन, है ना. पेंटिंग्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि वहाँ किस टाइप के एनिमल हुआ करते थे पहले, किस टाइप के कलर्स यूज़ किया करते थे वो लोग, है ना. एज पेंटिंग इज द मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन, है ना. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन हमारी किसके थ्रू जा रही है. In part 1 video I told you about that, and that was your cave paintings, है ना. Now let's see hunter gatherer societies from the present to the past, है ना. अब as our knowledge of present day hunter gatherers increase through studies by anthropologists, है ना, तो हमारी जो नॉलेज है आज के hunter gatherers की वो किसके थ्रू इंक्रीज हो रही है, हमारी एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू वो नॉलेज हमारी इंक्रीज हो रही है. नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी ऑफ द पास्ट. Okay, so this is very very important. You should know what is anthropology. Several explanations have been offered. One is that because of the importance of hunting, the paintings of animals were associated with
ritual, and magic. The act of painting could have been a ritual to ensure a successful hunt. Such a big animal was hunted by an individual, etc. etc. और भी कई हमारे पास एक्सप्लेनेशंस आए इन पेंटिंग्स को लेकर के, हंटिंग को लेके. इसके पीछे उन्होंने अपना रिचुअल्स बताए और कुछ मैजिक भी बताया, है ना. एज हम जैसे कि अगर हम आज प्रेजेंट डे में मान के चलते हैं तो आज भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आगे अपने गॉड को रखते हैं. इसी तरीके से वो लोग भी उनके कुछ ऐसी धारणा बना रखी थी उन्होंने कि अगर हमने पेंटिंग्स के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी एक वॉल पे प्लान कर ली है तो हमारा वो हंट कैसा होगा, सक्सेसफुल हंट होगा, है ना. इसीलिए दिस पेंटिंग्स are very very important part of early human. And on one side are scholars who have directly applied specific data from present day hunter gatherer societies to interpret the archaeological remains of the past. For example, some archaeologists have suggested that the hominid sites dated to 2 million years ago along the margins of Lake Turkana could have been dry season camps of early humans because such a practice has been observed among the Hadza and the Kungsan, है ना. तो उनका क्या मानना था हमारे स्कॉलर्स का कि हंटर गैदरर्स जो थे वो कुछ ऐसी जगहों पर रहते थे जहाँ पे हमारे फूड सोर्सेज होते हों, जैसे कि लेक तुर्काना, है ना. लेक तुर्काना जो है वो जो कभी ड्राई नहीं होती है वहाँ पे हमारे अर्ली ह्यूमंस रहते होंगे बिकॉज वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती होगी. Hadza. Hadza are a small group of hunter and gatherers living in the vicinity of Lake Eyasi, a salt rift valley lake. है ना. The country of the eastern Hadza, dry rocky savannas dominated by thorn scrub. So we are finding few animals such as elephant, rhinoceros, buffalo, giraffe, zebra, etc. etc. and few smaller animals such as porcupine, hare, jackal, tortoise and many other. All of these animals apart from the elephant are hunted and eaten by the Hadza, है ना. तो जो हमारी Hadza hunter and gatherers की कम्युनिटी है वो क्या करती है, एलिफेंट को छोड़ के इन सारे एनिमल्स को खा लेती है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल एंड फूड्स वी फाउंड हियर, roots, berries, etc. Though not often obvious to the casual observer, is always abundant even at the height of the dry season in a year of drought, है ना. तो क्यों यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है वेजिटेशन के लिए, है ना. जिसकी वजह से ड्राई सीजन में जबकि ड्रॉट जैसी कंडीशन आ जाती है तब भी इनके पास फूड की अवेलेबिलिटी होती है. द टाइप ऑफ वेजिटेबल फूड अवेलेबल इन डिफरेंट इन द 6 months वेट सीजन फ्रॉम द ड्राई सीजन बट देर इज नो पीरियड ऑफ शॉर्टेज, है ना. कोई भी शॉर्टेज का पीरियड नहीं होता है. सोर्सेज ऑफ वाटर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री इन द वेट सीजन but are very few in the dry season. The Hadza considered that about 5 to 6 kilometers is the maximum distance over which water reasonably be carried and camps are normally sited within a kilometer of a water course, है ना. तो जहाँ कहीं पे भी ये हादसा हंटर एंड गैदरर्स स्टे करते थे उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था कि वाटर की अवेलेबिलिटी हो. हार्डली 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो लोग रह लेते थे, है ना. Part of the country consists of open grass plains, but the Hadza never built camp there. Camps are invariably sited among trees or rocks and by
प्रेफरेंस अमंग बोथ, है ना। कभी भी हादसा हंटर गैदरर्स ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाए थे, है ना। बेसिकली they lived on trees or rocks and by preference among both, है ना। In spite of the exceptional numbers of game animals in their area, the Hadza rely mainly on wild vegetable matter for their food. Probably as far as 80% of their food by weight is vegetable, है ना। 80% उनका food क्या होता था, vegetable, while meat and honey together account for the remaining 20%, है ना। Camps are commonly small and widely dispersed in the wet season, है ना। उनके जो गैदरिंग करने का जो कैंप्स होते थे वो क्या छोटे छोटे कुंड में बना के रहते थे, है ना। और वो वेट सीजन में क्या हो जाते थे, स्प्रेड होकर के रहते थे। लार्ज एंड कॉन्सेंट्रेटेड नियर द फ्यू अवेलेबल सोर्सेज ऑफ वाटर इन द ड्राई सीजन, there is never any shortage of food even in the time of drought. On the other side, another group of scholars who feels that ethnographic data cannot be used for understanding past societies as the two are totally different, है ना। और अब हमारा एक ग्रुप था जो एंथ्रोपोलॉजी को मानता था, अब जो दूसरा ग्रुप है स्कॉलर्स का वो एंथ्रोग्राफिक डेटा को मानता है, एंड वो कहता है कि एंथ्रोग्राफिक डेटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटीज एज द टू आर टोटली डिफरेंट, है ना। दोनों ही एक दूसरे से क्या है, काफ़ी हद तक डिफर है ना, अपोजिट हैं। फॉर इंस्टेंस प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज pursue several other economic activities along with hunting and gathering, है ना। आज की डेट की अगर हम हंटर एंड गैदरर की बात करते हैं तो बेसिकली वो कई और तरीके की एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ट्रेडिंग में, है ना, इन सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती हैं, है ना। सो नाउ व्हाट इज एंथ्रोग्राफी? एंथ्रोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कॉन्टेम्पररी एथनिक ग्रुप्स. It includes an examination of their modes of livelihood, technology, gender roles, rituals, political institutions, and social customs. These include engaging in exchange and trade in minor forest produce, or working as paid laborers in the fields of neighboring farmers. And these societies are totally marginalized in all senses, such as geographically, politically, and socially. सो हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना क्या है, जो हमारे जो हंटर गैदरर्स हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस जैसे कि हनी, वैक्स, टिम्बर, ये सारी चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, है ना। इट मीन्स दे आर डूइंग बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग एज पेड लेबरर्स एज वेल, है ना। तो जो फार्मल सोसाइटी है उसके लिए तो ये सारी चीज़ें उनको हमारे जोग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली स्ट्रक्चर से हमारे पास्ट के जो हमारे हंटर गैदरर्स हैं उससे बिल्कुल ही डिफ़र करती है ना। तो इसीलिए वो लोग ये मानने को रेडी नहीं हैं कि हमें इस स्टडी से पता चल सकता है कि हमारे पास्ट के हंटर एंड गैदरर्स कैसे वर्क किया करते होंगे। नाउ लेट्स सी डेवलपमेंट्स बिटवीन 10,000 and 4,500 BC इन अर्ली ह्यूमन लाइफ, है ना। फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स humans lived by hunting wild animals and gathering wild plants. Then between 10,000 and 4,500 years ago, people in different parts of the world learned to domesticate certain plants and animals. This led to the development of farming and pastoralism as a way of life. And the shift from hunting to farming was a major turning point in human history, है ना। तो we can say slowly and gradually they learnt about domestication of plants and animal as well, और उसकी वजह से हमारा किसका, फार्मिंग का और पेस्ट्रोलिज्म का
डेवलपमेंट हुआ. With the introduction of agriculture, more people begin to stay in one place for even longer periods than they had done before. Thus, permanent houses began to be built of mud bricks, and even stones. These are some of the earliest villages known to archaeologists. Farming and pastoralism led to the introduction of many other changes, such as the making of pots in which to store grain and other produce and to cook food. Why they started making of pots? To store their grains and to cook their food as well. Besides new kinds of stone tools came into use, other new tools such as wooden plow were used in agriculture. Now gradually people became familiar with metals such as copper and tin, है ना. तो अभी तक हमारे जो ह्यूमंस थे उनके पास किसकी नॉलेज थी? ओनली ऑफ स्टोन टूल्स. नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली they are very much familiar with the metals such as copper and tin. The wheel is very important for both pot making and transportation came into use. About 5,000 years ago, even larger concentrations of people began to live together in cities, है ना. और कुछ 5,000 साल पहले हमारे ह्यूमंस ने एक साथ सिटीज़ में रहना भी स्टार्ट कर लिया था. तो what you all had seen that there were few developments between 10,000 से 4,500 BCE के अंदर आपने कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखे. Now question arises that कि why these developments occur, है ना. तो जो हमारा आइस एज था, हिमयुग जिसे हम कहते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट होने लगा था, है ना. जब वो मेल्ट हुआ जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ? रेज हुआ. जब हमारा टेम्परेचर रेज हुआ तो वो उससे हमारी वेजिटेशन क्या हुई? अच्छी ग्रो करने लगी. जब वेजिटेशन अच्छी ग्रो करने लगी तो हमने क्या स्टार्ट किया? हमने डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. तो जब when we started domestication and agriculture, since we had development. This is how this chapter is finished. I hope you all had enjoyed this chapter. Thank you.